Good morning and Assalamu alaikum. I am Humaira Kiani, hosting this session along with my fellow Manzoor Ilahi. But before going right in the session, I would like to thank each one of you being with us today. Today we are here to meet an interactive person and learn from him. It's my honor to introduce Mr. Anwar Zafar Khan Durrani. He is the president of Re-Energia and Pedare Dawanai, an ex-World Bank professional with over 34 years of work experience spanning 26 countries. His areas of expertise include infrastructure, disaster risk management, and with a focus on community-driven development, community infrastructure, and social protection, including disarmament, demobilization, reintegration, and public work programs. His more recent interests lie in public policy consulting and facilitations toward improving infrastructure and connectivity governance, and collaboration in social entrepreneurship. Mr. Amir's firm, Re-Energia, is an associate member of Global Network of Civil Society, Organization of Disaster and Reduction. He is the senior fellow at Pakistan Institute of Development Economics, PIDE, and a director on boards of Hashi Foundation Board and Center of Advanced Studies in Energy and Biomass Cluster. He is on the advisory board for Center for Global and Strategic Studies and is the co-chair of Corporate Advisory Council on Energy at National University of Science and Technology. Amir is a mentor and financing innovative and creative solutions, a platform where non-students serve communities around them for applying technical knowledge. He is also an active member of the Chartered Institute for Logistics and Transport. Amir often pens his thoughts and opinion on his personal blog, Empowered Pakistan, along with other platforms like Global Village, Space and Development 2.0. He frequently appears and invites special guests in media, TV and radio on issues relating to public policy and is a regular speaker on various other international and local fora. Without wasting further time, we need to start this session. I would like to call Mr. Zafar Khan Durrani. शुक्रिया जी बहुत तो आज इन्होंने अस्सलामुअलैकुम मॉर्निंग कैसे हो अच्छा एक दूसरे ने मुझे नया नाम दे दिया मेरा नाम आमिर है अनवर नहीं है अच्छा तो कई दफा होता है कि स्टूडेंट्स जल्दी में गलत पढ़ जाते हैं लेकिन आज का सेशन आई वांट फर्स्ट थैंक मुइन लॉट कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया आइडिया ये था कि हम लोग सोच रहे थे कि स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ाई तो करने आते हैं लेकिन एक्चुअली वो सीखने के आते हैं हमें पता नहीं है और उनको इस सारी तालीम के बाद BBA जिस तरह कुछ लोग कर रहे हैं कोई मास्टर्स कर रहे हैं तो वो उसके बाद क्या करते हैं मतलब उनकी उम्मीद क्या है वो क्या जॉब करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं और इसलिए हमने सोचा कि बजाय इसके कि हम कोई कोर्स करें हम स्टार्ट जो टॉक है अपनी इसका इब्तदाई इससे करते हैं कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप लोग हैं कौन तो आज की सारी डिस्कशन कुछ मेरे सीखने के लिए कुछ मोइन के सीखने के लिए कुछ फ्लावर के सीखने के लिए साथ के सीखने के लिए लेकिन इसलिए कि हम चाहते हैं कि आपको आइंदा जब मैं आऊँ तो कोई बेहतर तरीके से आपकी नीड्स के हिसाब से कुछ दे सके लेकिन उसके बावजूद कोशिश हम ये करेंगे कि हम फिर भी कुछ सीखें और एक दूसरे से सीखें तो आज का जिस तरह मैंने कहा अनुमान ये कि बट इसमें कुछ रूल्स हैं जो मैं हमेशा शुरू करने से लोगों से कहता हूँ कि आज हम इकट्ठे बैठे इसमें आप चंद चीज़ें जो मैं चाहूँगा आप बिल्कुल उससे इज्तनाब करें पहला तो ये कि दीन रिलीजन और सियासत पे कोई बात नहीं हो सकती ये क्लियर है सबको ठीक है दूसरी चीज़ ये है कि सबके दिमाग खुले होने चाहिए सोए नहीं होना चाहिए ठीक है आप ये पढ़ने के लिए आए सीखने के लिए आए तो इसकी प्लीज़ अपने ब्रेन ओपन रखें दूसरी चीज़ ये कि कोई दुनिया की चीज़ जिसको कहते हैं ना वो मुकद्दस गाय नहीं है तो हमारी जो डिस्कशन होनी चाहिए सैक्रोसेंट का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को एक मुकद्दस गाय बना दें मुकद्दस गाय का लफ्ज़ ही इसीलिए निकला है मुहावरा क्योंकि हम एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे पहले हिंदू होते तो वो मुकद्दस चूरन मिल गया तो कोई चीज़ आपकी सोच से बालातर या नीचे नहीं होनी चाहिए आपको हमेशा अपना दिमाग खुला रखना चाहिए अगली बात यह है कि हर एक का ओपिनियन क्योंकि आज मैं बहुत से सवाल पूछूंगा और मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप सब उसका जवाब भी दें और इंटरेक्ट करें अगर आप लोग आराम से बैठे रहें तो फिर इस जो अगला घंटा है इसकी आपको मज़ा नहीं आएगा ठीक है तो आई वुड लाइक कि आप सब लोग जो है अपना दिमाग खुला रखें एक दूसरे बात करें और जब कोई बात करे तो उसको वो उसका ओपिनियन है ठीक है और या उनको उस पर ज़रूरी नहीं है उसकी आपको एहतराम करना चाहिए
اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آج کی ساری یہ جو ڈسکشن ہوگی یہ آپ کے بارے میں, ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس سے پہلے شروع کریں کہ میں کون, وہ کون. میں سب سے پوچھنا ہوں کہ آپ لوگ کون ہیں. یہ میں سوال پوچھوں گا آپ سے, تو مجھے سب سے پہلے تو یہ پوچھنا ہے کہ اگر میں آپ سے ایک سادہ سوال کروں, کیا آپ یہاں پہ کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ ہاتھ اوپر کریں جو لوگ کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. تقریباً سارے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ جو سیکھنے آئے ہیں, کیا کس وجہ سے آپ سیکھنے آئے ہیں, یا کیا آپ پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں؟ ہاتھ کھڑکنے جو پیسہ کمانے کے لیے سیکھنے آئے ہیں. نہیں یار, یہ تو آپ نے جھوٹ بولا ہے. یہ جھوٹ بولا. نہیں, آپ سوال چلتے جائیں گے آپ سے. ٹھیک ہے, گڈ. سچ, کچھ لوگ جو ہے سچ آپ بولتے ہیں. دیکھیے یہ سچ بولنا بھی ہوتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کریں جو بہتر انسان بننے کے لیے آئے؟ یار یہ میں تمہارا مولوی نہیں ہوں, تم تمہارا باپ ہوں نا. بہت جھوٹی کلاس. اچھا, آپ میں سے کون ہیں جو ذہنی طور پہ ادھر ہیں؟ That's a very biased. وہ کون ذہنی طور پر؟ اچھا, آپ مجھے بتائیں, آپ کو بتاؤ, اس میں جھوٹ نہیں چلے گا کیونکہ اس کا تعلق ہمارے اگلے سوالات سے. مجھے وہ لوگ بتائیں جو کہ واقعی آپ کو پتا ہے کہ آپ زندگی سے کیا چاہتے ہیں. کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں صاحب. اچھا, آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ کیا چاہتی ہیں زندگی سے؟ ان کو مجھ سے بات کر نہیں, یہ شامل ہو. آپ لوگ بھی آئے ہیں, پڑھنے آئے ہیں, کچھ سیکھنے بھی آئے ہیں, اور ساتھ میں پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں. اچھا, میں سوال بہت ریفریش کرتا ہوں, یہ بڑا مزے کا سوال ہے. آپ زندگی سے کیا چاہتے ہیں؟ اچھا, یہ کس نے بولا تھا اچھا انسان بننا؟ اچھا ٹھیک ہے, تو اچھا انسان بننے کا راستہ کیا آپ کے لیے؟ یہاں پہ ایک اور خاتون تھی, شاید آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ آپ کو پتا آپ کیا کرنا چاہتی ہیں, بتائیے. تو فرسٹ آف آل تو ابھی یہاں پہ ہے تو مجھے اپنا ایک گول اچیو کرنا ہے کہ اسٹڈیز میں اگر میں ایک سیکوینس میں جا رہی ہوں تو مجھے اسی لائف میں ایک یہی گول ہے کہ میں اپنے جی پی اے یا جو بھی میرے ایک پرسنالٹی میں اس کو مینٹین کروں. دوسرا میں لائف سے یہ چاہتی ہوں کہ آئی وانٹ ٹو بی این انٹرپرینور. تو میرا جو ایک گول ہے اس کو میں اچیو کروں, اور اس کے بعد مجھے لائف سے کچھ نہیں چاہیے تو میری لائف تک کمپلیٹ ہو جائے گی اگر میں اپنا جو گول ہے ایک اچیو کر دوں اس کو. ویری گڈ. لیکن یہ گول نہ ہو یار, مطلب یہ میں بات کر رہا ہوں اب سے لے کے ازل تک, یعنی جب تک آپ کو اللہ نے زندگی دی. سیٹسفیکشن. اچھا, کیا ہوتی ہے سیٹسفیکشن؟ کیا ہوتی ہے سر, جب ہم کوئی چیز کے لیے وش کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں مل جائے. نہیں, سیٹسفیکشن چاہتے ہیں تو بڑا آپ جو وش کریں آپ کو ملتے ابھی میں ہیں. لائف سے کہہ رہی ہوں کہ لائف سے ہمیں سب چیزیں آپ کسی غریب کو دیکھتے ہیں اور آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں تو انسان آپ ساڑھے سال ہوتے ہیں, آپ نے ان سے پوچھا. اچھا, نہیں اور کس نے ہاتھ اٹھایا تھا؟ کون جانتا ہے؟ مجھے کوئی آواز مزے کا جواب نہیں آیا, مجھے سمجھ نہیں آئی, آپ کو شاید سوال سمجھ نہیں آیا. آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کو ذرا غور سے سنیں. ماشاء اللہ. چلے یہ تھوڑا قریب پہنچ رہے ہیں آپ. اچھا, ایرسٹوٹل کہتا تھا کہ ارسطو پڑھا مطلب کہتا ہے کہ پرفیکشن از نیور این ایکسیڈنٹ. تو آئی گیس مے بی یو اچیو اٹ, کیونکہ اگر آپ انٹینٹ کریں تو ہو بھی سکتا ہے. یہ پرفیکشن چاہتی ہیں. اچھا, اور کوئی اچھا سوال؟ اینی باڈی ایلس؟ ایک بزنس مین بننا چاہتے ہیں, ایک پرفیکشنسٹ بننا چاہتی ہیں, باقیوں کو شاید پتہ نہیں, ایک سیٹسفیکشن چاہتی ہیں. میم آپ کچھ بتا سکتی ہیں؟ میں آلریڈی اس وقت جو ہے میں یہ کہتی ہوں کہ جو میں نے ٹارگیٹ سیٹ کیے تھے بہت بگننگ میں نے کر لیے تھے, بہت چھوٹی ایج میں, اور آئی وانٹ ٹو بی اے ٹیچر. تو نا آئی ایم اے ٹیچر. میرے اپنا گول سیٹ کیا ہوا تھا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے ٹیچر ان اکنامکس. تو آئی ڈڈ اچیو مائی گول جو ہے. تو اس پہ میں ایک اور سوال پوچھ لیتا ہوں کہ جو ہے نا کہ ویسے ڈو یو نو واٹ یو وانٹ, اس کا ایک اور اینگل یہ بھی ہوتا ہے کہ وانٹ کی سٹیجز ہوتی ہیں.
तो अगर आप बस that's it. नहीं नया that's goal- not that's it. Always whenever I start my any concept, I start with the goal setting. I set my goal, what I want to achieve, and then I start working on that. And तो आप टीचर बन गए तो आपका नया गोल क्या है? नया गोल अब मेरे बच्चों को बच्चे fail माशाल्लाह बहुत मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो चुके हुए हैं, तो अब नेक्स्ट उनकी जो मैरिजेस होगी, तो ये अब मेरा इस स्टेज तक मैं पहुंच चुकी हुई, तो मतलब आई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ चलिए गुड हो गया। चलिए ये मतलब मैं ऐसे बता दूं, ये चोरी सवाल किसी ने सही कहा, एक बेचारे ने सच कह दिया कि वो बिजनेसमैन बनना चाहता है, वो नवाज शरीफ की पैरवी में जाना चाहता है, या मलिक रियाज की पैरवी में जाना चाहते हैं, सही है ना। लेकिन आगे चलते हैं, देखिए अभी तक आई थिंक मुझे जो सबसे अच्छा जवाब लगा ना इसमें से एक्चुअली ये लगा जिस तरह आपने सोचा, आपने ये से कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहती हूँ, तो आप इसका मतलब है कि आप एक ऐसी इंसान है कि जो भी गोल सेट करेंगी उसको आप ट्राई करेंगी। तो हमेशा जब भी आप गोल जिंदगी में सेट करें तो हमेशा सोचें आप एंड गेम सोचनी चाहिए। एंड गेम समझते हैं क्या होता है? मूवी देखी हुई एंड गेम? किसने देखी हुई मूवी एंड गेम? पिछले 5 साल में आई थी, नहीं देखी थी? जरूर गूगल कर लेना। एंड गेम का मतलब ये होता है कि किसी भी जिंदगी के मरहले पे ना कम से कम अपना टारगेट सेट करो कि यार 25 पे ये होना चाहिए, 35 पे ये होना चाहिए, क्योंकि एक बात तो बड़ी एक चीज बताएं, जिंदगी में सबसे हतमी चीज क्या है? मौत किस सेंस में? नहीं बेहतरीन। सो अगर जिंदगी में सबसे हतमी चीज डेथ है, वो सर्टेनिटी है, राइट? तो उसका मकसद, इसका मतलब है कि आपको जल्द से जल्द प्लान कर लेना चाहिए, ठीक है ना, कि अपना सोचें कि मैंने करना क्या, क्योंकि किसी के पास 2 होंगे, किसी के पास 10 होंगे, किसी के पास 200 साल होंगे। ये बहुत जरूरी चीज है। अब अगला सवाल है कि आप में से कितने लोग हैं जो अब यहाँ माशाल्लाह अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं, कितने लोग हैं हाथ दिखाएगा जो अपनी जिंदगी से मुतमईन हैं? सर ये हाथ ऊपर रखिएगा प्लीज। सर आप, वाह अच्छा। सो ये आप देख लीजिएगा। अच्छा तो मैं आपसे पहले सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको मुझे किताब जिंदगी से मुतमईन है, तो वो मुतमईन आपने कैसे गेज किया, पहले ये बता दें। I would determine how many times I'm happy. I look forward to the day. So I would say that's a good day, a happy day. So these days, sure, I'm blessed. अच्छा तो दैट्स वन वे, यानी कि अगर आप सुबह उठे और आप कुछ फील करें तो इसका मतलब आप जिंदगी से मुतमईन है। और किसने मुतमईन का हाथ उठाया था? हाँ बेटा आप बताइए। सर जो मेरे गोल्स थे वो मेरे फैमिली वालों ने भी उन्होंने हेल्प की है मेरे साथ, और मैंने खुद भी अपने गोल्स को अचीव किया और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और क्या नाम है साथ साथ जो मेरी ख्वाहिश है वो मेरे घर वाले पूरे कर रहे हैं, इस वजह से मैं खुश हूँ। अच्छा तो मुतमईन होने के लिए इसका मतलब हमेशा कोई टारगेट होना चाहिए ना, किस चीज़ की मुनासबत से हम मुतमईन हैं। तो और कौन था मुतमईन यहाँ पे? ये खातून जी परफेक्शन वाली। आप कैसे मुतमईन हो सकती हैं? परफेक्शन तो अचीव हो ही नहीं सकती और आप मुतमईन हैं। इस सेंस में कि तो मतलब मैं कौन सा बनना चाहती हूँ जिससे मुझे मतलब मैं सबसे ऊपर मतलब सुपीरियर हूँ, मतलब कि मुझे कोई टॉन्ट या कोई पाना ऐसा कुछ इस मामले में सुपीरियर। अच्छा आप अनअप्रोचेबल होना चाहती हैं, और ये तो कोई खसूसियत है मेरी मत मुतमईन है क्योंकि आप चाहती हैं कि मैं परफेक्ट हूँ और आप समझती हैं कि अब तक मैं जिंदगी खुश रहती हूँ, मतलब कोई होती है मतलब अच्छा कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी। अच्छा जो लोग से ज्यादातर क्लास हमने देखी है कि जिंदगी से मुतमईन नहीं है, यहाँ पे साइकोथेरेपिस्ट बुलाए और सबको मुश्किल मुझे लग रहा है, लेकिन जो लोग मुतमईन नहीं है वो क्यों नहीं है? तो 4-5 लोगों को मैं रैंडमली पूछूंगा। एक आप जो पीछे बैठे हुए नंबर 2 जो आप, हाँ आपकी मुतमईन नहीं है जिंदगी? मैं इस तरह से मुतमईन हूँ कि मेरी फादर की 4 मंथ्स पहले डेथ हो गई है। पहले मैं मुतमईन था अपनी लाइफ में हर चीज़ में, मतलब मुझे कोई मसला नहीं था। घर वालों को भी देखना पड़ता है, मतलब उनकी भी टेंशन उनको भी देनी पड़ती है क्योंकि मदर अकेली होती है, पीछे बड़ा भाई आगे पीछे होता है। फिर आपकी फादर की डेथ का सुन के अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। लेकिन ये बात तो आपने देखी ना कि मुतमईन होना क्या वक्ती हादसों से बंदा अपनी जिंदगी से मुतमईन या गैर मुतमईन हो जाता है? ये तो चैलेंज मिला है मेरी नजर में। और कोई बच्चा जिसने आपने आप बेटा ब्लैक आप मुतमईन मानो आप मुतमईन नहीं, आप क्यों नहीं? जो मैं चाहती हूँ वो होता नहीं है।
अच्छा ये रीजन फॉर दिस क्वेश्चन इज कि आप देखिए व्हाट डू आई वांट टू गेट फ्रॉम दिस मेरा सारा इसमें मसला ये कि मैं कोशिश कर रहा हूँ सोचूं कि आप लोग हैं कौन, राइट? तो मुझे अब तक ये नजर आया कि हमें अगर मुझसे कोई पूछे अभी कि अगर मैं देख रहा हूँ आपको कि सबसे पहली बात है कि किसी ने आपको जिंदगी में आप लोग टारगेट सेटिंग नहीं सीखी, ठीक है ना, कि मतलब क्या वो चीज़ें जो आप अचीव करना चाहेंगे, क्योंकि अचीवमेंट्स जो होती है ना वो एक मुसलसल एक लामुतनाही पहाड़ी सिलसिला होता है। आप एक चोटी सर करते हैं, फिर आप एक और पे जाते हैं, फिर आप एक और पे जाते हैं, फिर आप एक और पे। जिस दिन आपको मुतमईन हो गए क्या होगा? एक इंटरनल डेथ हो जाए, क्योंकि इंसान बनता ही मुतमईन ना होने के लिए एक तरह से तसलसल जिद्दोजहद के लिए होता है, ठीक है? तो मुतमईन की भी बड़े मुख्तलिफ मानी होते हैं, वो शायद सूफियाना मानी ले लिया सर ने। तो मुतमईन जो होता है, जो बंदा मुतमईन होता है वो बैठ जाता है, आप देखें ना कोई दरिया होता है मुतमईन बैठ जाता है, लेकिन वो जो बैठा हुआ दरिया होता है उसमें क्या होती है, डेप्थ होती है। तो ये नहीं हमें कहना चाहिए कि किसी की अगर स्ट्रगल की ख्वाहिश खत्म हो गई है तो वो मतलब उनके भी अपने फ़ायद है ज़िंदगी में होने के लिए, ठीक है? अच्छा एक और बड़ा मज़े का सवाल है कि आप में से कौन से लोग मुझे फिर हाथ दिखाएं, आप क्या समझते हैं आपके वजूद का कोई फ़ायदा है इस वक्त दुनिया में? कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि उनके वजूद का दुनिया में फ़ायदा हो रहा है? मैम आप क्या बता सकते हैं? अच्छा नहीं आपके वजूद का फ़ायदा हो रहा है, आपको मुझे पता है आपने सब्जियां बेची हैं। और कितने इधर बताइए ख़वातीन में से? अच्छा ये दो आप दोनों जरा पहले आप बताइए, आप क्यों समझती हैं आपके वजूद से कुछ फ़ायदा है? मुझे लगता है मेरे वजूद का फ़ायदा और किसी को हो ना हो, मेरे माँ बाप को है, उनके लिए ही मैं अपना टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ जितना हो सके, बस उनकी खिदमत वगैरह करने का मुझे मौका मिला है। ये इनकी जो बात है ना बहुत अच्छी बात भी की है, लेकिन आइंदा जब हम जा रहे हैं ना आई थिंक ये बहुत मज़े का इन्होंने जवाब दिया, ये सब याद रखिएगा, ठीक है? ये हमारे मुआशरे में जो माँ बाप का तस्वुर है और मेरे ख्याल में उससे हम कैसे बड़े होते हैं, आप बताइए। सर जो मेरी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझ पर है, तो मेरे वजूद का फ़ायदा मेरी फैमिली को है। आपकी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे? अच्छा वेरी गुड, इस पर मैं ज़्यादा आगे गहरा नहीं जाऊँगा। अच्छा लेकिन आपके वजूद का डेफिनेटली कोई फ़ायदा हो रहा है। इधर आए भी हजरात, सर आप बताएं जरा, आप फिर सुफियाना को जवाब दीजिए। Sir, I think the nature of the profession, when you feel like you are making a contribution, it helps. Once in a while, there is a reminder, a student come back, thanks you after a few years. These are things I learned from you, I appreciate that. I think that helps a lot. Then you have, very kind of reminder is very important. Like if I go home, my son and kids, they're happy to see me when they spend the time with me and they remember, recall the memories. So that really made a difference. Then whenever you do something, जिस तरह आपने कहा सुफियाना पता नहीं मुझे सोशल कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर आप सोचते हैं ये करते हैं रिमाइंडर हो कहीं ना कहीं और एक्टिविटी नजर आती हो कि उसका कोई रिजल्ट आया, तो आई थिंक यू फील satisfied that you are making a contribution. आपके वजूद से फ़ायदा है? नहीं सर। आपकी शक्ल से लगा ये तो अगर नहीं क्यों नहीं, इसकी वजह बताइए। कोई काम होता ही नहीं है जो कर सकता हूँ नहीं करता, कोई काम नहीं होता। अच्छा ये भी ज़रा ख्याल रखिएगा, इस पर भी हम आएंगे आखिर भाई, तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, इनको हमें भूलना नहीं है। मैम आप बताइए आपके वजूद का कैसे फ़ायदा होगा? All the people who are connected or linked with me, if they are getting any benefit out of me, then I think I'm useful for the society. तो इंसान बना इसलिए कि लोग आपका फ़ायदा हो, Yes, उनसे फ़ायदा not we all are interdependent people. मतलब people they need the other people's help, right? Wherever you can be helpful, okay, if you do that, it means that this is a point of satisfaction for you. अरे इधर से बहुत चुप क्लास है, ये चुप क्लास में से ये जो खातून नंबर 3 पे बैठी जी, आपके वजूद का कोई फ़ायदा है? सर ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स को ही, मतलब अगर मैं यहाँ पे पढ़ने आई हूँ अपनी बोर्ड अचीव करने आई हूँ, तो कल को मेरे पेरेंट्स को ही इससे फायदा होगा ना, मतलब मैं एक बन जाऊँगी। हस्बैंड होगा, हस्बैंड वो बहुत बाद में होगा। हस्बैंड को क्या फ़ायदा होगा? इसका मतलब है कि लड़के भी जो सिर्फ वाइफ के लिए बनते हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ?
ये तो खैर ये सवाल सही नहीं है, इसका बाद में मैंने इसमें कहा था ना ओपिनियन का क्या है। मुझे ये होता है आपका एक आखिरी सवाल इस साइड पे रुककर मैं कुछ गेज करूँगा कि आप में से कितने लोग हैं जो अपनी फीस या खुद अदा कर रहे हैं, मीनिंग खुद कमा के या कुछ हिस्सा कमा के दे रहे हैं फीस का? सॉरी, आप लोगों ने हाथ ऊपर रखे। ये लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा आप सारे, अब ये झूठ नहीं अच्छा लगेगा, शनाख्ती का नाजरा टूट जाने के। अच्छा चले जी, आपसे शुरू करते। आप जी। हाँ, मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, एक कॉल सेंटर है उसमें। अच्छा। वर्क फ्रॉम होम ही है, ठीक है। मैं कॉल सेंटर है बहरिया में, उसमें मैं जॉब करती हूँ। उसमें आप जॉब करती हैं। So, आप अपनी यहाँ की ट्यूशन खुद अदा कर रही हैं या कंट्रीब्यूट कर रही हैं? अपना जो हॉस्टल का है और अपना जो मंथली एक्सपेंस है वो भी मैं खुद कर रही हूँ, और बाकी मैं साथ साथ थोड़ा सेव कर देती हूँ, तो वो भी मैं अपनी फी खुद भी दे देती हूँ। वेरी गुड। अच्छा जी, और कौन है? अच्छा आप भी? यस सर, मैं वर्चुअल आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ एक कंपनी के साथ अटैच हूँ शावर में, तो उनके साथ मैं काम करता हूँ, तो मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ अपनी फीस में। आप अपनी फीस में कंट्रीब्यूट करते हैं? 70%। ये तो नहीं कि सिगरेट पानी का खर्चा इधर से जी आप। सर एज अ स्कॉलरशिप कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी फीस में। अच्छा स्कॉलरशिप वाला, हाँ ये एक अच्छा ट्विस्ट था जो मैं भूल गया, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है। स्कॉलरशिप आपको कहाँ से मिली? सर यूनिवर्सिटी से मिली है। आपने हमदर्द ऑफर स्कॉलरशिप? हाँ जी। अच्छा, तो माशाल्लाह यू क्वालिफाइड फॉर दैट। आप भी सपोर्ट और किसने आ बताया? स्कॉलरशिप पे स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप इधर कोई है लड़कों में से? आप हैं माशाल्लाह। आप जी, आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? मेरे फादर बिजनेसमैन है, तो मैंने उनके बिजनेस को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दिया और एक ऑफिस खोल लिया अपना कंस्ट्रक्शन के वाले पे। तो मैं कुछ कंट्रीब्यूशन करता हूँ अपनी फीस में भी और घर में। आपने दफ्तर खोले कंस्ट्रक्शन के हवाले से? किस किस्म की कंस्ट्रक्शन है? कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं हम। हाँ, क्या बनाते हैं? घर, बिल्डिंग्स। घर, बिल्डिंग। ख्याल रखिएगा भाई, क्या नाम है इस कंपनी का? फारूक ब्रदर्स। फारूक ब्रदर्स, तो बच के रहिएगा। Very good. I just want people to clap for these few people who are trying to construct. ये एक वाइल्ड चीज़ है जो कि आप देखेंगे पाकिस्तान में पाई नहीं जाती। तो मैं फिर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि मेरे ख्याल में सब कहते हैं कि क्यों आए इधर। मैं वो नहीं क्यों निकाला नहीं, मैं क्यों आए। तो सबसे पहली बात है कि जब मुइन ने कहा कि आप आएँ और थोड़ा सा लेट्स फाइंड आउट कि स्टूडेंट्स को हम क्या अदर देन कोर्सेज लाइफ स्किल्स में क्या किस किस्म की ट्रेनिंग देनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि आज से 40 साल पहले तकरीबन मैंने कैलकुलेट किया था 39, लेकिन 40 कर 39 years ago I was where you are today। मतलब आप समझ लो कि मैं उस वक्त अपनी बैचलर शुरू कर रहा था या बीच में। 60 मुल्क मैं घूम चुका हूँ। मैंने कल जाके वीज़े टिक किए, देखा है जितने पासपोर्ट नंबर बचे हैं, उसमें से तकरीबन 2 दर्जन में मैं फिजिकली काम कर चुका हूँ। ठीक, तो तीसरी चीज़ ये होगी कि अब अल्लाह के फजल से मैं अपना बॉस खुद हूँ, जो कि चले मतलब उसमें ये नहीं होता कि जब आप अपने बॉस बन जाएं तो पैसे उतने मिलते हैं जब आपके ऊपर बॉस होता था, लेकिन ये कि जब आप अपने बॉस बन जाएं तो वो थोड़े पैसे भी बड़े लगते हैं। दूसरी बात यह है कि अब मैं अपनी विल से पाकिस्तान वापस आया हूँ 6 साल पहले, ठीक है, और मेरे ख्याल में मेरी कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं है कहीं बाहर जाने की फिलहाल, और ना मुझे लगता है मतलब आई एम ऑफ माई ऑन फ्री विल। मैं वो नहीं कि जी मैं पाकिस्तान आया हूँ मुझे मिनिस्टर लगा देंगे, वो वाली नहीं है पीटीआई वाली चीज़, ठीक है। मैं पाकिस्तान उससे बहुत पहले आ गया था, लेकिन आया मैं ज़रूर इसमें था कि मुझे थोड़ा बहुत पसंद आया था कि जो पीटीआई का और इनका जो चल रहा है, तो यस थोड़ा बहुत हुआ है। सो पैसे मैंने बहुत कमाए और खर्च भी बहुत किए, ठीक है, लेकिन मैं अक्सर सुबह उठता हूँ सोचता हूँ कि मैंने पैसे तो कमाए हैं, खर्च भी बहुत कर लिए हैं, कुछ इतने बच भी नहीं गए, लेकिन क्या वैल्यू क्रिएट हुई है। तो सुबह जब मैं ये आपसे बात करने के बारे में सोच रहा था, मैंने सोचा कि यार ये वैल्यू क्रिएशन क्या होती है। आप में से कौन सा है जो बंदा मुझे डिफाइन कर सकता है कि कदर वैल्यू क्रिएट करना किसको कहते हैं? सर आपसे नहीं मैं पूछूंगा, मे बी परफेक्शनिस्ट आप बताइए। वो देखना वो तो बिजनेस ला रहे हैं अपने बाप के, उन्होंने साथ एक और दफ्तर खोल लिया, पैसे कमाने लग गए, ठीक है।
ये कहीं काम करें पैसे कमा Sir, रहे अगर वैल्यू आप- क्रिएशन किसको कहते हैं? कोई एक्नॉलेज करे आपकी सर्विसेज जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, मास्टर में एक नाम है। आपकी एक गुडविल क्रिएट होती है। चलो ये डेफिनेशंस हम लेते जाते हैं. अच्छा गुडविल कोई एक्नॉलेज करे. आप क्या कह रही थी? सही है कि when you are contributing something new to the society, it means you have added some value to the society or in terms of your goals. तो मैं ओपनहाइमर हूँ और मैंने एटम बम बना दिया. मैंने वैल्यू क्रिएट की. क्रिएटर ऑफ नहीं सवाल क्रिएट वैल्यू. अच्छा आप बताइए. सर क्योंकि हम कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, अगर हम लोगों ने ये चीज़ क्रिएट की भी नहीं मैं वो उसको भूल जाऊँ तो मैंने एग्जांपल दी थी. आप बताइए आपके जेब में वैल्यू क्रिएशन क्या होती है? सर यही जो मैम ने आगे डिफाइन किया कि कोई भी न्यू चीज़ अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि एक किसी कल्चर में कुछ चाहिए. क्या इखलाक नई चीज होती है? नहीं. तो अगर आप इखलाक से पेश आते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? You are creating value in terms of social norms. That's also a definition. Anyway, इस पर भी गौर करते हैं. बट मैं लास्ट अपने बारे में इसलिए बता दे रहा हूँ कि अभी भी मुझे सीखने का बहुत मज़ा आता है. और मैं कभी कभी जब घर पे थोड़ा सा परेशान होता हूँ, लोग मेरे से अकेले होते हैं कि मैं उनको टाइम नहीं दे रहा, तो मैंने कहता मैं अभी भी उतनी पढ़ाई कर रहा हूँ जितनी मैं यूनिवर्सिटी में करता था. मैं भी अगर इतनी मैं उस वक्त कर रहा था तो शायद मैं कहीं और पहुँच चुका हूँ. तो लर्निंग जो है वो अगर आपको लेट भी मिल जाए तो वो मेरे ख्याल में इस वक्त मैं अपने हाईएस्ट लर्निंग फेज पे. ठीक है. अच्छा बट मैं आपके साथ क्या करना चाहता हूँ, ये वो दिस इज व्हाट द नीड्स असेसमेंट टुडे इज अबाउट. मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ ऐसे सवाल पूछें जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें. मैं चाहता हूँ कि आपकी जितनी ख्वाब हैं अब उनके ऊपर एक सेंसर बोर्ड बिठा दीजिएगा. आपके ख्वाब जो हैं वो कैसे एनेबल हो, मतलब कैसे हम आपको हेल्प करें कि आप अपने ख्वाब अचीव कर सकें. आपकी नीड्स, आप समझते हैं नीड्स और उसमें डिज़ायर्स में भी फ़र्क होता है. नीड क्या होती है? ज़रूरत. कोई मुझे ज़रूरत की मिसाल दे दे. जी सर पानी ज़रूरत है. बड़ी अच्छी मिसाल दी. और कोई खातून ऑक्सीजन काम ज़रूरत है. ऑक्सीजन बहुत बेसिक. लेकिन ये बेहतरीन पानी इज अ गुड एग्जांपल. मतलब पानी के बगैर आपका नहीं चलता. मकान के बारे में मैं थोड़ा सा मतलब आपने वो शायद आप वाइट की वेबसाइट पे जाइएगा, अगर जाते मैं आपको दे के जाऊँगा तो उस पर कभी परसों एक लेक्चर हुआ था जिसका नाम है प्लॉटिस्तान. कि पाकिस्तान का नाम हम चेंज करके रखते हैं प्लॉटिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान प्लॉट कम पे चलता है. ठीक है. तो ये ज़रूरत नहीं है बच्चे क्या है. अच्छा दूसरी बात यह है कि आपके साथ मैं खड़ा हूँ, मोइन खड़े हैं, लेकिन मेरे आने का मकसद अगर उन्होंने मुझे दोबारा आने दिया तो यही होगा कि आपका नेटवर्क इंक्रीज करूँ, आपके लिए दरवाजे खोलूँ, आपको और लोगों से मिलवाऊँ जिनसे आप मिलना चाहते हैं. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो जिस तरह मोइन से बात हुई थी कि हर चीज़ हम लाइफ स्किल्स में आपको लाइफ स्किल्स को हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि हम क्या स्टूडेंट्स को दें कि वो यहाँ से निकलें कोर्स के अलावा, कि वो एम्प्लॉयबल हों, अपनी ड्रीम्स अचीव कर सकें. या वो अपना एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी की नौकरी कर लें. इसको मैं डिप्लॉयबिलिटी भी कह सकता हूँ. हाउ कैन अ पर्सन जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से निकलता है डिप्लॉय हो जाए इंसानियत में. डिप्लॉय का मतलब आप समझते हैं? आपने मूवी नहीं देखी रैम्बो शैम्बो? डिप्लॉय करते हैं ना फोर्सेस जाके. एक तैयार होता है वो एसएसजी तैयार होता है तो उसको डिप्लॉय करते हैं ना कि जहाँ जरूरत होती है. सो डिप्लॉयबल वर्सेस एम्प्लॉयबल. डिप्लॉयबल मैं इसलिए लफ्ज़ सुबह सोच रहा था कि एम्प्लॉयबल तो एक ज़रा अब आजकल एक माजूर लफ्ज़ हो गया, क्योंकि दैट मीन्स इज दैट आप किसी के नौकर लग जाएंगे. तो आप चूँकि हम 21वीं सदी में और आप लोग 21वीं सदी के नौजवान हैं सारे के सारे, तो आपकी गैरत भी हमसे बहुत ज़्यादा है. तो वो उस बेसिस पे मैं सोचा डिप्लॉयबिलिटी की ज़रूरत है कि आपको हमको क्या स्किल दे कि जैसे आप यहाँ से निकलें या जब यहाँ पे आप हों आप दुनिया में डिप्लॉय हो. किस चीज़ के लिए? Achieving your goals. Whatever the world demands of you, जो भी दुनिया आपसे मांगे और जो आप दुनिया से मांगे, आप डिप्लॉयबल हो. ठीक है.
मतलब ये जो मायूसी होती है ये कि जी फलानी चीज़ आपको एक डिप्लॉयबल फॉर्म में, तो ये लेट्स रिमेंबर दैट, ठीक है, डिप्लॉयबिलिटी। दूसरी एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप सबके अंदर ना कोई एक इंसान कहीं ना कहीं है किसी के अंदर? अच्छा, ये इंसान मर्द होता है औरत होती है? इंसान इंसान होता है या होती है? होता है तीनों। फिर वो नहीं मतलब ये जोक नहीं है, मैं मतलब मैं खुद इसके बारे में सोच रहा था कि उर्दू में इंसान को किसने इस्तेमाल किया, बट बीइंग ह्यूमन, ठीक है ना, फर्क होता है आदमी में। क्या वो आपको पता है शायद क्या करता है आदमी? बस के दुश्वार है आदमी, वो बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। ठीक, ये शायरा भी है। अच्छा, तो बेसिकली ये कि वी वांट टू मेक श्योर एंड गेट यू टू अ पॉइंट जहाँ पे हम आपको कोई आगे डिप्लॉयबिलिटी स्किल्स, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि वो क्या आपको हुनर चाहिए या वो क्या चीज़ चाहिए आपको। और बट इसके ऊपर फिर वहीं वापस आ जाते हैं सक्सेस पे, क्योंकि ये मैं इसके बारे में रात जब ये सोच रहा था कि आपसे क्या बात करें, तो सक्सेस के ऊपर मैं एक ओपन डिस्कशन चाह रहा हूँ, ठीक है। I'd like कि आप सब अगर हाथ उठाएं, सबसे पहले कोई मुझे बताए कि आपके जहन में सक्सेस जो है ना, बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है उर्दू में, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कामयाबी। लेकिन मैं जब भी कामयाबी सुनता हूँ या जीत सुनता हूँ, उसका मतलब है कि मैंने किसी को रोंदा है रास्ते में, कोई किसी पे जीतता है, कोई किसी चीज़ में कामयाब होता है तो कुछ ना कुछ रह जाता है। तो डेफिनेशन कामयाबी की, सक्सेस की, आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, आप चलें, आपसे शुरू करते हैं। मेरे नज़दीक जो सक्सेस होना ये नहीं है कि हम जो है सक्सेसफुल लाइफ जीएं या कामयाब हों। मेरे लिए ये है कुछ सीखना, अपने आप को इम्प्रूव करना, किसी के साथ मुकाबला नहीं करना कि वो जीत गई है। हमें उसकी खुशी में खुश भी होना चाहिए, और अगर हम जीत रहे हैं तो हमें उस चीज़ से सबक सीखना चाहिए। बेसिकली मेरे लिए सक्सेस। अच्छा, गुड स्टार्ट। यस सर, इम्प्रूवमेंट मतलब अपने आप को सक्सेस इज इम्प्रूवमेंट, बेहतर बनाना। चलें सर, आप। Very different things to different people. To me, success is you set some goals and you achieve them, come close to them. मैंने एक दफ़ा सुना था कि it's not always to get what you want because you will have nothing left to desire for, but always struggling towards something. I think that would be success. Moving towards achieving it, looking at yourself and being happy about it, being satisfied, that would be successful. थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। यही कि अगर मैं किसी गोल तक जाना चाहता हूँ तो मैं काम करता रहूँ तभी सक्सेस हूँ मुझे। आपके सीधे हाथ पे एक साहब है, बहुत चुप बैठे हुए। कामयाबी, सक्सेस किसको बोलते हैं जी? अभी आज आप शादी नहीं आज हो रही नहीं, आप बोलिए, आप ऐसे नीचे देखो, किसी और की तरफ देख के बोलिए। आपके ख्याल में सक्सेस क्या चीज है? सुबह उठ के यूनिवर्सिटी आ जाए। That's actually देखिए कि नहीं इसमें हंसने की बात नहीं है। देखिए, इन्होंने कहा जो आप गोल सेट करते हैं वो अचीव कर लेना। कुछ लोग जो हैं गोल सेटिंग कदरे करते हैं, राइट? तो उनके लिए बड़ी बात है कि सुबह उठ के यूनिवर्सिटी, जैसे आज ऑनेस्टली मेरे सारे दफ्तर में शर्त गई थी, ये 8:30 नहीं पहुंचे। मतलब मेरी टीम जो ये आपके करीब है हमारा दफ्तर है, तो सीरियसली बख्तावर एंड बेट गोइंग, आई डोंट नो व्हाट वैल्यू, बट वो सब आज फोन करके पूछ रहे होंगे कि ज्यादा नहीं पहुंचेंगे आप। एक से की बात हम अंदर आ गए। आप आते भी अटक से। कितने बजे चलते हैं सुबह? 5:30। And so today he is not well also. But he is not well, he is not feeling well, but still he came to university to impart the knowledge. That is the courage वो बाइक का तुम समझ आ गई।
تو میں بھی موٹر سائیکل چلاتا ہوں, بہت زیادہ شوق ہے مجھے موٹر سائیکلنگ کا, تو اس لیے میں سمجھ گیا ہوں تم 5.5 چھوٹ کے کیوں بات کرو. نہیں ایک شوق ہوتا ہے, آپ لوگ جتنے لوگ کبھی 2 پہیوں پہ جائیں تو اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. لیکن وائی اٹیک سے ادھر کیوں آپ سر گھر ہے یہاں پہ, مدر اکیلی ہوتی ہے نا, اور بھی ہے نہیں, بٹ یہاں پہ جو ہے وائی دس یونیورسٹی, وہ اٹیک میں کچھ نہیں تھا, ایڈمیشن نہیں ملا. کیا آپ نے کیا میرے نزدیک سیٹسفیکشن جو اچیو ہو جانا سکسیس ہے, چاہے وہ ہار کر آپ کو اچیو ہو, بعض اوقات آپ ہار جاتے ہیں. جیسے ہم بچوں کو جتانے کے لیے نا کہ وہ خوش ہو جائیں, ہم ہار جاتے ہیں. پیرنٹس ہیں نا, بینگ پیرنٹ, میں کئی دفعہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوں, وہ میں چاہتی ہوں وہ خوش ہو جائیں گے, میں ہار جاتی ہوں. تو مجھے سیٹسفیکشن ہوتی ہے, دیٹ از مائی سکسیس, کہ میں ٹھیک ہے میں نے اس کو خوش کر لیا. مطلب یو کین ناٹ ڈیفائن کہ آل دا ٹائم یو آر ونر اینڈ یو آر سکسیسفل, ناٹ ایٹ آل. میں سو گیا ہوں آپ کے ساتھ میں بیٹھے. ہاں بتائیے سکسیس کس کو کہتے ہیں آپ بھائی؟ یہ 2 شرمیلے لائن سے بیٹھے بیٹا بولے نا. چلیں آپ سوچ کے بتائیے گا کیونکہ یہ واقعی سوچ رہے ہیں. ہاں سر اچیو کرنا کچھ گولز, اور ہمیشہ سکسیس جو ہے وہ آپ ون کر کے نہیں لے سکتے. چلیں ٹھیک ہے. کامیابی کامیابی کس چیز کو, کامیابی کیا کامیاب, واٹ از کامیابی؟ سر بندہ خود بھی کامیاب ہو اور دوسروں کو بھی کامیاب کا جو لفظ ہے نا وہ غلط تھا. شروع میں آپ کو بتا دیں کہ کامیاب کام ہو گیا تو آپ پورا ہو گیا, یعنی کامیابی تو یہ بھی ہوگی کہ نواز شریف جیل سے چھوٹ گیا. اچھا آپ بتائیے. اپنے گولز کو اچیو کرنا بھی ایک سکسیس ہے سر. اپنے گولز کو اچیو کرنا سر, جب بندہ خوش ہو میں کہتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو. زبردست. آپ بتائیے. محنت کرتا ہے کیا کاوش صرف کامیابی گنی جا سکتی ہے؟ بیکاز یہ دیکھیں نا, یہ صرف اٹھ گئے آ گئے بڑی بات ہو گئی. آپ انہوں نے جو پیچھے بولا سر میرے لیے انہیں سیٹسفیکشن ہی سکسیس ہے. اوکے دس از گیٹنگ کمپلیکیٹڈ. آپ بھائی بزنس مین. ہاں سر آپ کو کتنی بھی مشکل ہے, اگر آپ اپنے گولز کو اچیو کرنے کی پورا ٹرائی کریں, اندر سے اچیو نہ بھی کریں, اگر آپ میرے ساتھ میرے دوست اور میرے جاننے والے لوگ سے خوش ہیں نا, میرے وہ پرسنالٹی سے خوش ہیں, تو یہ میری سکسیس ہے. سر لائف میں کچھ ایسا کر جانا کہ جس سے لوگ آپ کو مرنے کے بعد بھی یاد کر سکیں. سر سکسیس از سم تھنگ, جیسے سر آپ کچھ چاہتے ہیں اور وہ ہو رہا ہو, آپ کو حاصل ہو رہا ہے, تو آپ انر سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ یار میں سکسیس کر رہا ہوں. انسان اپنے آپ کی خوشی بھی دیکھ سکے اور دوسرے کی بھی خوشی دیکھ سکے. اکارڈنگ ٹو می اپنے آپ سے مطمئن ہونا سکسیسفل. سر مجھے لگتا ہے کہ ہم جس کلچر میں رہتے ہیں, ہماری فیملیز کے ساتھ ہماری سکسیس کو یہ زیادہ کرتے ہیں. مینس کہ اگر ہمارے ماں باپ خوش ہیں, ہمارے بچے خوش ہیں, تو آٹومیٹکلی ہمیں سکسیس فیل ہوتی ہے. اچھا چلیں میم آپ نے تو بتا دیا, آپ بتائیے دوبارہ سے. اگر گھر والے خوش ہیں اور جو ہم نے گول سیٹ کیے ہیں جس کے لیے ہم یونیورسٹی میں اور سے سنتے رہیے پلیز. اچھا میم آپ. Sir, basically, according to me, success, I have segregated my goals in 2 ways. Some are the short-term goals and some are the objectives. And once I have set my goals and objectives, then I strive for them to accomplish them. But no, doesn't matter کہ میں نے accomplish کر لیا یا نہیں کر لیا. But my efforts that I have put in that, اگر میں اس سے satisfied ہوں and I'm happy that میں نے اپنے 50% goals میں سے 20% بھی achieve کر لیے ہیں, and for further goals I am striving for that, that is success to me. And on daily basis I جیسے آج میں نے کچھ کام کر لیا, then further tomorrow I set certain goals for me and then I strive for that, and up to that limit کہ مجھے لگتا ہے کہ ہاں I have put my 100% effort, and now it's up to Allah and it's up to the circumstances that we are dealing with that is coming under my success, that I'm satisfied with. Okay.
सक्सेस इज अ बेसिक, मेरे ख्याल से सक्सेस जो है वो स्ट्रगल का नेम है बेसिकली। आप स्ट्रगल करते रहते हैं तो सक्सेसफुल आप हो जाते हैं। स्ट्रगल बेसिकली नेम है। स्ट्रगल सक्सेस, वेरी गुड। आप सर वो जो आपका गोल है वो अचीव करना। आप अपने फ्लॉज से, अपनी गलतियों से सीखना मिल रही है सक्सेस है कि मैं दोबारा वो रिपीट ना करूँ। अच्छा, फैमिली की अगर दुआएं साथ है ना तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल है और आपको जो भी सक्सेस चाहिए होती है ना वो मिल जाती है अगर फैमिली की दुआएं आपके साथ। वेरी गुड। आपसे सर सक्सेस वो है जो हमने कोई एक गोल सेट किया और उसके लिए हमने काफ़ी स्ट्रगल की एंड पे वो हमें मिल जाए तो वो इनर सेटिस्फेक्शन भी आ जाती है और सक्सेस भी। आगे चलते रहेंगे, ये बारी सबने लेनी है। सर स्ट्रगल करना मेहनत करना आपके गोल्स तक पहुंचना। दूसरा ये कि आपकी इनर सेटिस्फेक्शन भी आपके लिए एक सक्सेस है। अगर आप किसी के साथ ईमानदार हो तो आप अल्लाह के नज़दीक भी आपकी सक्सेस है और आपकी दुनिया में भी आपकी सक्सेस है। सर मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे मेरी फैमिली जो है वो प्राउड फील कर रही है, तो मेरी नज़र में मेरे लिए ये सक्सेस है। आवाज है? जी आवाज से तो नहीं? नहीं। आप भाई सर मैं बता यार, मैं फिर बोला मैं भूला होगा, माफ कर दो भाई, सॉरी। सक्सेसफुल होना है बेसिकली ये नहीं है कि हम सक्सेसफुल हैं लाइफ में, हमें किसी के मतलब फेल होने से भी कुछ अगर वो सीख रहे हैं ना तो वो सक्सेसफुल लाइफ ही मतलब It's not a struggle. फिर जो गोल सेट किए गए हैं स्ट्रगल करके उनको अचीव करना और उनका बेनिफिट खुद को भी होना और दूसरों को भी। इनर सेटिस्फेक्शन। Inner satisfaction. सर दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलते हैं। Sorry, किनको? दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, लेकिन आपने एक रूल तोड़ दिया। आपने भी रूल्स तोड़े हैं सर। इस पे बात अच्छा, आगे से गोल्स को अचीव करेंगे। सॉरी, आप जरा, मैं सॉरी, आई कुडंट लिसन। आप बताइए। सर खुश रहना, दूसरों को खुश कुछ रहना। वेरी गुड। गोल्स अचीव करना अपने। ओके, मिस परफेक्शन। सर कुछ ऐसा करना जो आप एग्जाम्पल मिले इसकी। और दूसरी बात ये कि जिस भी मतलब माँ बाप के साथ, सबके साथ एज अ फ्रेंड सबके साथ सिंसियर रहना। अरे, what I want you to reflect after this, मतलब ये जरा गौर करिएगा। आप सब ने सक्सेस का measures बता दिए हैं, मतलब आपने उनकी मुझे बता दिया है कि स्ट्रगल है, एक ने फैमिली सेटिस्फैक्शन है, इनर सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है, गोल्स अचीव करना है। पर ये मतलब तुम्हें जिस सक्सेस की अभी भी कोई डेफिनेशन मुझे नजर नहीं आई है। सो आई एम अ लिटिल confused कि मतलब इतने सारे क्राउड में, इतने डाइवर्स क्राउड में हमें सक्सेस की डेफिनेशन नहीं मिली अभी। जी प्लीज, सॉरी आप सर। सर मैं सक्सेस को इस तरह देखता हूँ कि these are the outcomes of your efforts. मतलब लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरा YouTube चैनल है, ठीक है, मैं जितनी एफर्ट करूँगा उसका आउटकम उतना अच्छा होगा एंड इनडायरेक्टली इट विल रिलेट टू सक्सेस। अगर लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि इफ आई लूज 1000 सब्सक्राइबर्स इन वन डे आई वुड फील कि देयर इज समथिंग गॉन रॉन्ग and that cannot be measured as success. आप इसको रेटिंग करते हैं। ठीक सर, वो रेटिंग है, लेकिन मैं उसको उस सेंस में जो है वो नहीं, I get it। देखिए सक्सेस का सारा दारोमदार जो होता है ना, जिस तरह इस सालों में से जो एक चीज मुझे नजर आई है जो कि मैं समझ सकता हूँ कि उसका कोई पर्सनल गोल सेटिंग में बहुत से लोग फैमिली को खुश रखना सक्सेस समझते हैं। ठीक है, इस बात को जरा प्लीज अपने अंदर इंग्रेन कर लें, ठीक है, क्योंकि मेरा ख्याल में ऑलमोस्ट 70% ऑफ द क्लास एंड कि फैमिली खुश तो हम खुश एंड हम सक्सेसफुल, राइट। इसका असर माशरे में क्या पड़ता है, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी आगे हम उस पर जरा बात करेंगे। लेकिन घर जाके सोचिएगा कि आप सक्सेस कर किसके, व्हाट इज सक्सेस। तो बहुत कम लोग थे जिन्होंने काविश को स्ट्रेस कहा, मुझे ये डेफिनेशन पसंद आई। बहुत कम लोग थे जिन्होंने कहा था कि सिर्फ जो है क्या कहना चाहिए, इनर किसी ने हैप्पीनेस कही थी, हाँ हैप्पीनेस, राइट, आपने बोला था शायद। तो कोई ना कोई मेजर होना चाहिए। अब माँ बाप हेल्प भी सोच सकते हैं आपके लिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप फिर क्या करेंगे, तो सक्सेस हो नहीं होगा। तो ये हमें मेजर्स जो है ना, इनके बारे में जरा गौर करना चाहिए अच्छी तरह से कि व्हाट इज रियली मेजर्ड। जी प्लीज। कि आप मैं सक्सेस को ये समझता हूँ कि जो
آپ کے گفٹس ہیں جو آپ کو آپ کے اندر ہیں. اگر میں اپنی بات کروں کہ جو بھی صلاحیتیں میرے پاس ہیں اگر ان کو استعمال کر کے میں کچھ تخلیق کر سکوں, کچھ بنا سکوں جس سے مجھے ایک خوشی ملے اور اس سے مجھے ایسی فیلنگ ہو کہ میرا جو پرپس ہے دنیا میں آنے کا وہ تھوڑا بہت پورا ہو رہا ہے, تو وہ سکسیس. نہیں بٹ یہ بہت اچھی بات کی نا. دیکھیں مجھے پیچھے سے ایک خاتون کی نظر سے لگا تھا کہ پھر مجھے قتل کروانے کی بات ہے. تو بیسیکلی دیکھیے میں نے کہا کہ ماں باپ اچھا نہیں, ہم سارے انسان ہیں, چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو چاہے کوئی ہو, مطلب ہم میں سے کوئی عقل کل نہیں ہے, ہم میں سے کوئی خالق نہیں ہے, ہم میں سے کوئی نبی نہیں ہے. ہم سارے جو ہے ہم ایک فانی اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم بیسکلی ایک امپرفیکٹ اینٹیٹیز ہیں جو پرفیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر میں اپنا سارا دار و مدار, میں آپ کو ایک پرسنل مثال دیتا ہوں. ہم نے زبردستی اپنی بیٹی کی شادی کرائی, 6 مہینے بعد اس کی ڈیورس ہو گئی. ہم نے تو اس کے لیے بہت اچھا سوچا, نتیجہ کیا نکلا, بیڑا غرق ہو گیا. یہی ہوا نا. تو یہ ضروری نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پیرنٹس کو یا ان کی سمجھ بوجھ اتنی ہو کہ وہ آپ کو صحیح راستے پہ چلا سکے. ہاں اخلاقیات کے لیول جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہوتے ہیں, لیکن اس سارے خیال کو ذرا ذہن میں رکھیں کیونکہ دس ریئلی آخری جو میرے 2 حصے ہیں دے ریلیٹ ٹو دا فیکٹ کہ آپ جا کہاں رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا ڈرانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ سارے لوگ جو ماں باپ سے خوش رہیں گے کہ ماں باپ تو تب خوش ہوں گے تو گھر کو پیسہ بھی کما کے لاؤ. مطلب میں تو سارے دیکھتا ہی رہتا ہوں بچوں کو, یار کچھ لاؤ کچھ کرو. اب مجھے تو سونا چاہیے تھوڑی دیر لیٹ نا, لیکن ایسا ابھی تک ہو نہیں رہا ہے. میرے ماشاء اللہ 32 سے لے کے 10 سال تک کی عمر کے بچے تو سوچے تو اسی لیے تو صبح اٹھانا پڑتا ہے. اچھا, تو یہ کہ دیکھیں ابھی سکسیس آپ ہم نے میجر کری, لیکن دنیا میں کیا ہونے والا ہے, دنیا میں آگے جو کچھ ہونے والا ہے. اور یہ میں اب ایک میرے دوست ہیں یوسف حسین, ان کی طرح نہیں بولوں گا, لیکن میں اس کو سادہ طریقے سے بولوں گا. یہ آپ پڑھتے رہتے ہوں گے 4th انڈسٹریل ریولوشن, 4th انڈسٹریل ریولوشن, 4th انڈسٹریل ریولوشن. 4th انڈسٹریل ریولوشن کو قرآن میں یا عربی میں کتنے لوگوں کو تھوڑا سا یاد ہے کہ یہ جو ہے نا کہ ایک چیز کہنا ہو جانا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کون سوری کسی نے کیا کون فیکون, رائٹ. تو یہ بائبل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے کہ اللہ نے کہا اور ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو جو کہا ہو گیا ہے یہ جو چیز ہے یہ بیسکلی ہم اس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ لوگ اس کو یقین اور حتمی مانیے کہ یہ جو ہمارا ایک ڈیوائڈ تھی بایولوجی کے اور فزکس والی ادھر, پھر جو فزیکل ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں, تو بایولوجی کیمیکل ایک طرف ہو گیا, فزیکل ورلڈ یہ ہے آواز آئی, چوٹ لگی, یہ فزیکل ورلڈ ہے. کیمسٹری کیا ہے, تمہارا زکام ہے, طبیعت خراب ہے, ٹھیک ہے, کیمسٹری دیر, رائٹ. اچھا, دیر از اے بایولوجی دیر, ٹھیک ہے, پیپل آر بورن. اچھا, آخری چیز کیا ہے, ڈیجیٹل. تو یہ جو کرنٹ سے کام ہو رہا ہے اور ڈیجیٹل, جو ہر چیز ڈیجیٹل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف کمپیوٹر. Digital is anything to do with currently, and when you digitize something, what is digitization? You turn it into a binary thing. When you turn everything into a binary 1-0 or a gated equation, eventually the distance between یہ جو ساری چیزیں ایک ہوتی جا رہی ہیں. تو کن فیکون کا دن, مثلا اگر آپ ابھی دیکھیں تو میں ابھی پچھلے دنوں دبئی گیا تھا کووڈ سے پہلے, تو وہاں میں نے یوں کیا, چیز یوں ہو گئی, میرے یہاں سر پر میں کچھ لگا دیا, جو میں سوچ رہا تھا کر رہا تھا وہ آگے اسکرین پہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے کبھی وی آر گلاسز آج کل کے لیٹسٹ دیکھے؟ آپ اپنی آنکھ ہلاتے ہیں, ابھی جو لیٹسٹ آ رہے ہیں آپ کے ایپلز, آنکھ ہلاتے ہیں موو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو دنیا کہیں اور جا رہی ہے اور ہم ابھی تک کسی چکر میں پڑے ہوئے کہ گھر جائیں گے, کھانا پکائیں گے, یہ رائٹ. سو یہ بڑی ایک سیریس سوچ اس کے بارے میں چاہیے, کیونکہ آپ لوگ جب یہاں سے نکلیں گے تو دنیا اور قریب آ جائے گی اس ایونچوئل. ٹھیک ہے, اس میں 2 قسم کی قدریں نکلیں گی. ایک قدر یہ ہے کہ جس کو میں کہتا ہوں پری ڈیسٹنی, جو آپ کے میں کہتا ہوں گمراہ لوگ کہیں نہ اس کا جاتے ہیں, اس لیے ریلیجن کو ہم باہر رکھیں گے. لیکن یہ ایک سوچنا کہ بس جو ہونا کا ہو جائے گا, ایک اس قسم کے لوگ بنیں گے. ٹھیک ہے, ایک اس قسم کے لوگ بنیں گے جنہوں نے وہ اسٹرگل کرنی ہے اس سسٹم میں کیا ہونے کی,
डिप्लॉय होने की, यानी जिस दिन आपको पैराशूट किया जाएगा आपने कहीं डिप्लॉय होना है। तो वो डिप्लॉइंग वर्ल्ड, अभी आप सोचो मैं पिछले सदी के मिडल में पैदा हुआ, राइट? मेरे होते हुए, अब इसकी मैं उम्र मुझे नहीं पता, शायद ज्यादा होगी, लेकिन मेरे होते हुए अभी भी हम फोन यूं क्रिकेट घुमाते थे, हमारे अम्मी अब्बा उसको ताला लगा के जाते थे ताकि हम क्रिकेट ना कर सकें, और हम वो टुक करके, ठीक है ना, हम ये सोच भी नहीं सकते थे जिस वक्त मैं पैदा हुआ था कि ये कंप्यूटर होगा मेरे हाथ में जिसकी इतनी मेमोरी होगी कि वो मेरे सारे काम, मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है इससे, मुझे ये बताता है कहाँ जाना है, मेरे सारी ये रिकॉर्ड रखता है। मैं जब यूनिवर्सिटी गया हूँ तो एक इतनी बड़ी डिस्क होती थी 5.25 इंच, जो पता है कितना डेटा रखती थी? 64 KB, the first floppy disk, ठीक है? तो हम उसको ये सोच नहीं सकते कि चीजें होने लग जाएंगी। मेरा जो सबसे यंगेस्ट बच्चा पैदा हुआ है उसकी पहली आया मासी आईपैड, वो 2 साल की उम्र से अपनी मर्जी से आईपैड चला रहा है, डाउनलोड कर रहा है। इस वक्त वो खुद उससे म्यूजिक सीख रहा है, वो इतनी माठा म्यूजिक नहीं सीख रहा, वो चुनिया वाला, मतलब वो कहता है इसको बीथोवन सीख रहा है बैठा हुआ, उसने अपने आप को ट्रेन किया है, मुझे सिर्फ उसको एक लाख। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये हम इस दुनिया में जाने वाले, तो क्या हम इस दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हैं? दूसरी चीज ये है कि आप मुझे कहते नहीं हम तो BBA में, तो इसलिए मैंने कुछ चीजें लिखी, डेटा उठा के देखी। अच्छा, ये कोविड आने से ना इस पर बहुत लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ये टाइम कितना रह गया और कितनी जल्दी दुनिया श्रिंक करेगी, ठीक है? मिसाल के तौर पे अभी तक हम पिछले साल, आपको पता होगा, कॉन्फ्रेंस जाना बड़ी चीज होती थी कि नहीं होती थी? सॉरी, तो अब इस वक्त आपका 80% बिजनेस ट्रांजैक्ट हो रही है, ट्रैवल कॉस्ट खत्म हो गई है, हम वही काम मार्च से बैठे क्या कर रहे हैं? जूम पे कर रहे हैं। मतलब मेरे एक बच्चे ने अपनी पूरा सेमेस्टर टर्की वाला घर से बैठ के किया, क्लासेस भी की हैं, टाइम भी निकला है। मेरा सबसे छोटा बच्चा जो है वो भी इस वक्त जो है अपनी 4th जमात वो ऑनलाइन कर रहा है, ठीक है? वो तो हमने भी घर से बाहर निकाला है क्योंकि वो मतलब हिलते ही नहीं है वरना। So the issue is that this is the world. So that data में हो, currency में, मैंने एग्जाम्पल दिया, एजुकेशन में हो, आप IoT, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, ये सब एक नॉर्मल चीज बनती जाएगी, ठीक है? सो सबसे पहले हमने ये सोचना है कि क्या आप फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में जानते हैं कि आगे का जो एनवायरनमेंट होगा काम का वो कैसा होगा? सो बेसिकली ये है कि इस सारी चीज को सीखने के लिए आपको बहुत जल्द 2 चीजें आपको जल्दी सीखनी होगी, ठीक है? एक है चेंज, अडेप्टेशन एंड डाइवर्सिटी। वो ये कि आपको मिसाल तौर पे आप आज मिस्त्री हैं, कल को घर बनने बंद हो जाते हैं और सारे जो है 3D प्रिंटिंग से हो रहे हैं, तो आप फटाफट अगली चीज क्या कर सकते हैं? आपके पास कितने हुनर हैं जो आपने अपने अंदर सोचे हुए, ठीक है? मैं मतलब अपनी मिसाल दे देता हूँ कि मतलब ये जो मेरी सारी जिंदगी अगर आप देखें ना, तो मैंने सरिये बिछाने से काम शुरू किया था, ये चारपाइयाँ लगाते ब्रिजों के ऊपर, ठीक है? वहां से करते करते जब वो बंद हो गया, फिर चारों कंप्यूटर पे जाना पड़ा, मुझे कंप्यूटर नहीं आते थे, ठीक है? फिर वापस उसी फिजिकल लेबर में, फिर वहां से सीधा इंजीनियरिंग लेबर में, ठीक है? उसके बाद करते अगर आप फील्ड्स देखें कितनी चेंज की है, इत्तेफाक से मैंने बेताशा। अभी जो है अगर एक बंदा या बच्ची, मैं आजकल के पिछले मैं बताते हैं कुछ 6000 शॉर्ट लिस्ट किए लोग हमने ओवर द लास्ट 6 years, 6000 से थोड़ा ज्यादा है। I've kept a data of this year, in the last 3 weeks alone 300 CVs we have vetted, उसमें से कितने 6 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो वो जो 6 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया, मैंने उसमें देखा कि हर कोई की बड़ी रिजिड कंडीशन है कि मैं तो जी एनवायरनमेंट की बंदी हूँ, बस एनवायरनमेंट में मैंने काम करना है, बस इसी में रहना है। So the issue is portability of skills जो है ना वो बहुत जरूरी होती जा रही है, ठीक है? क्योंकि आप, और दूसरी चीज ये कि हम अब एक ऐसी सदी में भी जा रहे हैं कि अगर आप उसको मैकेंजी की रिपोर्टें पढ़ें तो अगले साल से लेके 2025-30 तक वो कहते हैं कि 2030 के अमेरिका में 50% अमेरिकन जो होंगे वो कहीं नौकरी नहीं कर रहे होंगे। इसका ये नहीं मतलब कि उनके पास पैसे नहीं होंगे, वो जॉब नहीं करेंगे, वो कमाएंगे नहीं। वो रिपोर्ट ये कहती है कि वो गिग इकोनॉमी में होंगे। गिग इकोनॉमी क्या मतलब है कि वो अपने लिए खुद काम कर रहे होंगे यूजिंग
the connectivity to the web, to the internet, using IoT to achieve things, right? تو چاہے اس نے کچھ ٹھیک بھی کرنا ہے تو وہ گھر پہ بیٹھ کے اس سے کرے گا. تو یعنی انڈیویجول کانٹریکٹر رول بڑھتا جا رہا ہے. تو اس پہ میں جلدی سے ایک شو آف ہینڈز, آپ میں سے کتنے لوگ حکومت کی نوکری لینے کے خواہاں ہیں؟ گورنمنٹ جاب. اچھا, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہیں نوکری لینے کے خواہاں ہیں؟ کتنے لوگ؟ آپ لوگوں نے نوکری نہیں کرنی. میں بھی پوچھ رہا ہوں نا کہ گورنمنٹ کے علاوہ نوکری کرنی ہے, وہ ہاتھ اٹھائیں. کن کن لوگوں نے نوکری کرنی ہے؟ نہیں ہوتی اس میں اس طرح کرنے کا کیا جابس لینی ہے. جابس لینی ہے, کتنے لوگوں نے جابس لینی ہے؟ تو جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ کیا کریں گے؟ اچھا, وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہاں سے نکل کے اس کے بعد وہ اپنا بزنس چلائیں گے, ہاتھ اٹھائیں. نہیں اتنا بولے, وہ کہنے کا مطلب اپنا بزنس ہے. تو بے تحاشا لوگ کہہ رہے ہیں بزنس کریں. کیا بزنس سوچا آپ نے؟ سر ایکچولی فیملی بیک گراؤنڈ میں بزنس ہے سر, اسی کو کیریئر کرنے میں. سوال ٹھیک ہے, آپ ٹھیک نہیں ہوا. کوئی اور بزنس والا آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر میں پچھلے سال تقریباً 400 پودے لگائے اورنج کے. 400 پودے لگائے اورنج کے, سنترے کے. اچھا, سنترے کے. باغ لگایا ہوا ہے. اچھا اچھا اچھا, ویری سر گڈ. اس میں 5 آلو کے, لیکن وہ خراب ہو گئے. کس جگہ پہ؟ سر سوابی. اچھا, ویری گڈ ویری گڈ. دیکھیں بزنس اچھی بات ہے, آپ اپنا بزنس کنٹینیو کریں نا. میں ان کا دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سے لوگ ہیں جو کسی اور کا, کسی نے آپ نے بتایا تھا بزنس کا آپ کریں گے. ہاں, کیا سوچ رہے ہیں؟ ریسٹورینٹ. ویری گڈ. اور کوئی بزنس والا ہاتھ ادھر سے؟ ریسٹورینٹ. اچھا, آپ تو حکومت کی نوکری کرتے ہیں. لیکن اس ساری ڈسکشن کا مقصد کیا تھا؟ یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ سب نے یہ سوچا ہے کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہیں گے, کیا جو آپ ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ آگے جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں. مثال طور پر بزنس انہوں نے کرنی ہے, یعنی آپ نے باغ لگانی ہے کرنے, تو میں ان سے یہ سوال سیدھا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں BBA کیوں, ایگریکلچر کی ڈگری کیوں نہیں کی؟ ایک مجھے مثال طور پر بتائیں. پہلے سے کامرس میں بھی یہ باغ لگایا, مطلب شوق پیدا ہو گیا نا. پہلے سے جب میٹرک میں تھا وہاں پہ کوئی کالج وغیرہ نہیں تھا, کامرس کالج ہے صرف. ابھی یونیورسٹی آ گئی, یونیورسٹی آف سوابی میں. ہاں, لیکن میں نے باغ لگایا تھا, ابھی شوق ہے اس کا, تو ابھی بھی بہت جو مل جاتا کر. اچھا, یہ جو ہے نا آج میں نے کافی کچھ سیکھا ہے. یہ آخری 10 منٹ جو ہے نا میں صرف اس پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے مطلب جس طرح میں آپ لوگوں سے ملا ہوں, اس طرح کووڈ کے دوران ہم لوگوں نے کافی سیمینارز رن کیے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ یہاں کے کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ڈپلائبلٹی اسکلس نہیں ہیں. تو ڈپلائبلٹی اسکلس میں سب سے پہلی بات یہ ورک ایتھک, ولنگنیس ٹو ورک, سب سے بڑا جو مسئلہ. اور یہ وہ چیزیں جو میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس پہ آپ بے شک اس کے بعد مجھ سے ڈسکشن کریں. سب سے پہلی بات جو ہمیں نظر آئی ہے, اور یہ بہت سے لوگ اسپیشلی جو باہر سے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں ولنگنیس ٹو ورک. جس کی وجہ سے ہم میں سے بہت سے لوگ باہر بھی رہ کے آئے ہیں, اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس پیسے تھے, بس اس لیے کہ جانا پڑا. تو جب وہاں آپ جاتے ہیں تو آپ چاہے اتنے سے بھی بچے ہوتے ہیں تو وہ صبح پیپر رنس شروع ہو جاتے ہیں. وہ شروع سے بچے کی ٹریننگ ہے, بچی کی ہوتی ہے کہ کچھ کماؤ, بیبی سٹنگ کرو, کچھ کرو, چاہے وہ 15 سال کی ہو. تو ایک کام کی ایک عظمت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس پاکستان میں اس وقت وہ کام کی عظمت جو ہے وہ تقریباً نکلتی جا رہی ہے. اب یہ کیوں ہے ہمیں نہیں پتا. ہمیں نظر نہیں آتا جب ہم امپلائر کے طور پہ جاتے ہیں کہ کوئی ولنگنیس ٹو ورک, یعنی کہ کیا آپ کام کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. دوسری بات ہے آئیڈلنس. اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے یوتھ جو ہے وہ آئیڈل ہے. انفیکٹ انشاءاللہ آپ کی یونیورسٹی کو ہم انکلوڈ کریں گے اگر ہمیں پیسے مل گئے. ہم ابھی ایک سروے کرنے والا ہے ٹائم یوز پہ فائٹ کے ساتھ. تو وہاں بیکاز ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اچھا پوری دنیا میں ہوتا ہے ٹائم یوز سروے, لیکن جو ٹائم یوز سروے کا ایک پراکسی نیٹ کہتے ہیں اس کو, NEET, necessary employed or employable empty time, something like that, ٹھیک ہے.
तो ये ILO का इंडिकेटर है, पाकिस्तान सबसे नीचे है, ठीक है, कि हम लोग ज्यादातर वो क्या कहते हैं पंजाबी में बेलियां मारते रहते, ठीक है, वी डोंट वर्क, यानी हम समझते हैं कि चलो जी बस पढ़ाई कर ली बहुत हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ एम्प्टी लेबर पता है किसको कहते हैं? मैम आप इकोनॉमिक्स की पढ़ाती हैं, एम्प्टी लेबर किसको कहते हैं जरा बताइए। एम्प्टी लेबर का मतलब होता है कि हम लोग बैठे रहे, हमें काम मिल जाए और हम कोई काम न करें। विदाउट वर्क अर्निंग, विदाउट वर्क अर्निंग, या सो विदाउट वर्क अर्निंग इज बेसिकली, अगर आप पूरा गवर्नमेंट के दफातर में देख लें तो क्या है? एम्प्टी लेबर चल रहा है, लोग हैं बैठे हुए, काम कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। सो आप आइडलनेस और एम्प्टी लेबर को ऐड करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि पाकिस्तान क्यों इस खड्डे में, सीधी सी वजह। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये है कि सेटलिंग डाउन, पाकिस्तान में लोगों को खुमार है, बस यार शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, प्लॉट ले, ठीक है। नहीं मैं सीरियसली मैंने इसके हाथ को उठाया कि वो बेइज्जती लगती है, लेकिन ये जनरल ट्रेंड आप जानना चाहते हैं, एवरीवन वांट्स बस यार शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, प्लॉट मिल जाए, अस्सलाम वालेकुम, धुस फिर दाढ़ी उगाओगे और दो बकरे गाय हुआ करेंगे, ठीक है। सो ये जो होता है सेटलिंग डाउन वर्सेस एक्सप्लोरिंग, इन्होंने मिस्टर मोइन ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी थी कामयाबी सक्सेस की ना। सक्सेस ये होती है कि आप अपने लिए रोजाना फ्रंटियर आप देखें मेरे में सलाहियत क्या है, मतलब मुझे पता है कि मेरे अंदर एक मिस्त्री की सलाहियत है, मैं ये वाकई आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि मेरे अंदर लिखने की सलाहियत है, ठीक है, और मैं बाकी चीजें नहीं, लेकिन ये कि मैं अब उसी को एक्सप्लोर करता रहता हूँ और उसमें सलाहियतों को उजागर करने के लिए थोड़ा सा इंसान को क्या होना पड़ता है? खुद गर्ज। आप ये याद रखिए कि खुद गर्जी एक अच्छी चीज भी होती है, दुनिया की हर चीज जो होती है, लेकिन अगर आप खुद गर्ज नहीं होंगे तो आपकी अम्मी कहेंगे चलो यार दूध ला दो, आपका अगले दिन इम्तिहान है, ठीक है ना। थोड़ी खुद गर्जी तो यहीं से शुरू होती है ना, हमने की भी है, हम में से आप हंस रहे हैं, आप पढ़ते नहीं होंगे, मुझे तो पढ़ना पड़ा तो ये खुद गर्जी तो चलती है ना, आपको लगता है। तो खुद गर्जी जो है इसका एक पॉजिटिव एलिमेंट है कि आप अपने लिए हमेशा सोचेंगे कुछ नया काम करना चाहिए, मैं ये क्यों करूँ, मैं ये कपड़े क्यों खरीदूं, साथ में फैशन चला है, मैं हमेशा कोशिश की है कि जो फैशन चला उसके अलावा कोई पुराना अब्बा का फैशन निकाल के पहने, ठीक है। क्योंकि इशू ये होता है कि आपके, ये एक बड़ी सिंपल सी घर की एग्जांपल है, आप अपने आप सोचना शुरू करें कि आप लोग चाहते क्या है, क्या आपकी ख्वाहिशात सिर्फ सेटलिंग डाउन की है या एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स की। अच्छा, दूसरी चीज है इंडिपेंडेंसी ऑफ स्पिरिट, और ये मैंने देखा ही अभी जो हमने पढ़ा था, सारे लोगों ने कहा बस माँ बाप खुश रहे, इसको मैं कहता हूँ फैमिली शैडो। आप ये फैमिली शैडो ये सिर्फ आपकी मुआशी जिंदगी में नहीं सिर्फ होता, ये आपकी समाजी जिंदगी में भी होता है। इन सारी चीजों का एक दूसरे पर बहुत बड़ा दारोमदार है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल माँ बाप की फिक्र न करें, लेकिन ये बात सोचने की है कि क्या ये हमारी ख्वाहिश है कि हम बस कहते हैं माँ बाप खुश हो जाए। मेरी ख्वाहिश ये क्यों नहीं है कि मैं ऐसा काम कर दूं कि उसके बाद पाकिस्तान जो है आई डोंट नो कोई बड़ी चीज बन जाए। मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि वो एक अब क्लीशे बन गई, यानी एक रटी पिटी बात बन गई। लेकिन आप गौर करें कि आपकी आम ख्वाहिशात क्या है, वो एक बड़ी मामूली ख्वाहिशात है। जो लोग दुनिया में चेंज लाते हैं, चाहे वो सऊदी अरब बैठे हुए, चाहे वो यूएई बैठे हुए हैं, चाहे वो अमेरिका बैठे हुए, चाहे स्पेन बैठे हैं, चाहे जापान, चेंज फॉर द गुड, जिससे इंसानियत में कदर बढ़ती है, कदर से कदरें बढ़ती है, वैल्यू ऐड होती है। वो काम तो हमें अभी तक किसी ने जवाब ही नहीं दिया उसका। चंद लोगों ने कहा ना कि बस कोशिश, स्ट्रगल, बट स्ट्रगल फॉर व्हाट? जिस दिन आपको ये डिफाइन नहीं पता लगेगा कि स्ट्रगल मैंने किस चीज के लिए करनी है। लोगों को नौकरी देना भी एक अच्छी स्ट्रगल है। सो जो बिजनेस वाले हैं ये भी अगर गौर से अपना काम करें तो ये बड़ी नोबल चीज है, क्योंकि आप किसी को एम्प्लॉय करते हैं, आपके लिए 10 लोग काम करते हैं, आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं माशरे में। ये फैमिली शैडो जो है, इसका दूसरा एग्जाम्पल समाजी उस पर देखिए, ठीक है ना। समाजी इसमें है कि प्रेशर है हर वक्त, और वो उन प्रेशर्स को मैं अभी डिफाइन नहीं करूंगा, लेकिन अगर इंशाल्लाह हम आगे इस पर हमने बात की और हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस फैमिली शैडो, हाउ टू रीथिंक वंस लाइफ, तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। इसमें बहुत मवाद है, गूगल करिएगा। अब ये स्किल्स, इन्होंने पौधे लगाए चल रहे हैं, इसका मतलब ही हैज अ ग्रीन थंब ना, मतलब इनके एक स्किल है
खेती बाड़ी एक स्किल होता है, हर एक से पौधा नहीं उगता और नाराज हो जाते हैं पौधे, ठीक है ना? तो द थिंग इज कि आप अपने स्किल्स डिफाइन करें, मेरी स्किल क्या है यार। बीपीए पता है कितने निकलेंगे इस साल, शर्म आती है मुझे बताते हुए। कहाँ जाएंगे ये सारे, क्या करेंगे ये लोग, आपकी स्किल क्या है, ठीक है? बीपीए पे टूल है उस स्किल को डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है? तो आपकी स्किल है। अच्छा, स्किल और टैलेंट, सर स्किल और टैलेंट में ये फर्क है कि सर स्किल हम सीखते हैं, टैलेंट हमें नेचुरली होता है सर, पहले से होता है, वो हमें एक्सप्लोर करना पड़ता so है। talent can also be converted into a skill, but you have to develop the talent, and that skill maybe वो जिसको आप कहते हैं ना virtuoso, यानी कि फिर वो यानी मेहदी हसन वाला एक्शन ना कि टैलेंट इनेट अल्लाह मियां ने आवाज दी, उसको डेवलप किया गया तो वो स्किल बन गई। लेकिन वो जो टैलेंट से निकली हुई स्किल होती है वो बिल्कुल एक अजीम रास्ते पे लेके जाती है, ठीक है? और आखिरी चीज है अपॉर्चुनिटीज। आपने यहाँ बैठते हैं रोज, आप ये सोचते हैं कि मेरे लिए आगे मौके क्या है, ठीक है? ये सोचना कि मौके हैं भी या नहीं, मतलब सिर्फ ये सोच लेना कि हुकूमत नौकरी नहीं, तो फिर यही होगा ना, जैसे नर्सें बैठ जाती हैं सड़क पे, आप भी सारे बीबी वाले लिखी होंगे हुकूमत की नौकरी चाहिए, हुकूमत की नौकरी चाहिए, ठीक है ना? यही होगा ना, ये होता है दुनिया में। क्योंकि ये जो एजुकेशन है, जो सिस्टम है पाकिस्तान में, ये पेस नहीं रख रहा उस चीज से जो पाकिस्तान को चाहिए, ठीक है? मिसाल तौर पे जितने बीबीए, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, तालीम याफ्ता किसान चाहिए। तो मैं फिर ये कहता हूँ कि आप अपनी स्किल्स के बारे में सोचें और अपॉर्चुनिटीज बाहर क्या है उनके बारे में सोचें, ठीक है? और ये प्लीज घर पे बैठना इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक ये आज के लिए काफी है, तो फिर इंशाल्लाह इनके साथ बैठेंगे, देखेंगे कि आप, लेकिन एक छोटा सा मेरे लिए आपने काम करना है कि आप सारे अगर जाते हुए सब साथ को ईमेल्स पे, इनके सब ईमेल्स अगर कलेक्ट कर लें एंड एवरीबडी, आप में सिर्फ एक एक लाइन में लिखना है कि आप क्या सीखना चाहते हैं। इलावा दिस इज लाइफ स्किल्स, राइट? फिर मैं और मोइन साहब बैठेंगे, हम सोचेंगे इसके बारे में कि कौन या किस तरह उस सिलेक्शन को डिलीवर किया, ठीक है? एंड इट विल बी इंटरैक्टिव टुडे, जिस तरह आज हमने बात की हम उसी तरह कोशिश करेंगे कि आप सब दोनों बात, ठीक है? शुक्रिया बहुत। एक्चुअली हम जो चाह रहे हैं, एक तो मैं जो चाह रहा हूँ वो ये कि हमदर्द हिल जाए, मतलब जो एक चीज़ें चलती आ रही हैं तो अगर उसी तरह चलती रहेंगी तो फिर उसी तरह चलती रहेंगी और हम वो ही करते रहेंगे जो हमेशा करते रहें। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो और आप लोग मतलब उस चीज़ से निकलें और जो भी डायरेक्शन है वो सोचें कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। और दूसरा ये कि ये जो आमिर के साथ जो हम करना चाह रहे हैं वो ये कि एक सीरीज ऑफ टॉक्स जो कि जिनमें मतलब हम भी आपसे सीखेंगे और आमिर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और ये इसका जो डिज़ाइन है वो साथ साथ बनता जाएगा। जो फीडबैक, जैसे फीडबैक आप देंगे तो उसी डायरेक्शन में आमिर जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे आमिर ने कहा तो वो आप ज़रूर फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि फिर ये आपके ऊपर है, जितना आप फीडबैक देंगे, जितना आप इसमें इन्वॉल्व होंगे उतना ही अच्छा चलेगा। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट है, आप प्लीज़ इसको कामयाब बनाइए। और इसमें